Hello, everyone. Welcome to the second podcast of Humans of DeFi. Today, we have a really special guest who is founder of IBC Capital, who is a content creator, and who has been in the crypto space since a really long time. So, I would like to invite Mr. Hitesh Malviya. Hitesh bhai, kaise ho? Hi Vivan bhai, thanks for inviting me and I'm good यार, आप कैसे हो? All good, all good. I am pretty sure मैंने बहुत छोटा intro दिया. Would love if you could just double down on that and tell our viewers who is Hitesh Malviya. Yeah, sure. So I've been working in this space since past 7 years. So 2016 I started and I started my career in this space as a blockchain consultant. So I worked with Emphasis as a blockchain consultant. At that time, only a couple of guys were exploring blockchain in India. And during the same time, I also started building content 2016 के आसपास. So I set up a blog called itsblockchain.com and I was writing blogs on that on my blog and with Emphasis I was working on different use case on blockchain and along with that मैं कुछ education trading वगैरह भी वहाँ पे करवाता था. Like I was actually my role was to build the team from scratch. Like I have given people from bench, like people who have no experience working in the IT sector. They were just passed out from college and मेरा job था कि उनको blockchain सिखाना and उनको कैसे blockchain के use case बनाने, कैसे setup करना है. So that was my role basically. And apart from that I was also building some POC. I was also attending client meetings all. So वो सब करते थे and उससे मैंने अपना journey start किया. And after a couple of months I explored crypto and crypto में like before that I actually mined Bitcoin 2013 में. So I come from a hacking background. So I was a black hat hacker initially. Then I went into ethical hacking. So during that time, one of my friend he was mining bitcoins from his Alienware का laptop. So उसने बताया कि इस टाइप से आप कर सकते हो. So like उसने खाली setup करके दिया and he just helped me with all the setup and everything. And वो setup करके mine हो गया. But मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था कैसे mine होता है. And even I was not I didn't do any research कि क्या है Bitcoin. खाली था कि mine हो गया and mine होके like आगे 4 Bitcoin mine हुए. मैं और मेरा दोस्त दोनों उसको share कर रहे थे. And उस time पे $100 प्राइस थी यार. तो दैट टाइम अपन नए नए काम कर रहे थे और उस टाइम में $100 भी काफ़ी बड़ी चीज़ थी. तो हमने सेल ही कर दिया और सेल करके और बाद में भूल ही गए. लेकिन देन आई मूव्ड ऑन. मैंने कभी फिर बाद में रिसर्च ही नहीं किया कि बिटकॉइन में क्या हुआ. सो बाद में 2017 में व्हेन आई एक्सप्लोर्ड ब्लॉकचेन. सो ब्लॉकचेन पढ़ते पढ़ते आई क्या मैं क्रोज किया यार बिटकॉइन की टैग है ब्लॉकचेन. तो उसके बाद मैंने बिटकॉइन को एक्सप्लोर किया, इथेरियम को एक्सप्लोर किया. देन उसी टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन पे. आई बॉट माई फर्स्ट बिटकॉइन फ्रॉम जेब पे. 40,000 रुपीज़ था उस टाइम पे प्राइस. So उस टाइम पे I bought couple of bitcoins like उससे पहले I sold my startup. So I got some money. So उसमें से major portion मैंने investment कर दिया bitcoin में. So I bought couple of bitcoins. And उसके बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि bitcoin को आप multiply कर सकते हो ना. You can multiply a bitcoin by doing trading. So altcoins का पता चला, ethereum का पता चला, ripple का पता चला. Ripple was one of the popular altcoins that time. Like even ethereum से पहले ripple पे ज़्यादा profit मिलता था. So ripple, neo ये सब एक्सप्लोर किए. दैट वाज माय बेस्ट ट्रेड्स इनिशियली. नियो में अच्छा कमाया, रिपल में अच्छा कमाया, वहां से स्टार्ट हो गया. उसके बाद इसमें ब्लॉकचेन में तो ठीक है. आई वाज राइटिंग अबाउट ब्लॉकचेन बट आई वाज नॉट गेटिंग एनी ट्रैफिक ऑन माय वेबसाइट. देन आई मूव टू क्रिप्टो. आई स्टार्टेड कवरिंग क्रिप्टो एंड अल्टकॉइंस पे ज़्यादा फोकस मेरा हुआ. 2017 मेनली अल्टकॉइंस पे मैंने काफ़ी काम किया. एंड उसके बाद फिर मैंने ये क्रिप्टो एडवाइजरी सर्विस भी स्टार्ट की. आई सेट अप ए प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन साइन अप एंड दे कैन रिसीव recommendation. They can receive articles, videos, educational material and everything. Like एक one stop solutions था वहाँ पे. आप क्रिप्टो का आपको सब कुछ ही मिल रहा था. So that I was selling that annual subscription and वही था story. and इसके बाद मैं 2017 में like I made decent amount of money as well. It's blockchain जो site setup किया था उस पे भी I used to get millions of page view per month. It was sort of like 2017 में जब start किया था तो I started with a very limited capital और almost काफ़ी कम ही पैसा था like. But जब वो end हुआ 2017 तब I never imagined कि इतना सही हो जाएगा सीन. I think crypto में ऐसे ही होता है ना, काफ़ी कम टाइम में you made money. So that time 2017 में 2017 में एक चीज और हुई कि मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि आप 35 साल से पहले अगर घर ले लेते हो तो आप ले सकते हो. अदरवाइज you can't buy a house, right? I've read it somewhere. I don't remember. This is 35. Yeah, before 35 you can afford, otherwise you can't afford a home. ऐसा कुछ था. Got it. तो ये माइंड में था मेरे, यार ऐसा सीन होना चाहिए. तो आई गॉट सम मनी. तो बिटकॉइन वगैरह मेरे थे. बट उस टाइम लगा था कि आई थिंक इट मे बी द गुड डिसीजन टू बाई ए होम इन मुंबई. बट अभी तो
if I look back and see कि वो मैंने सबसे बड़ी गलती थी. Yeah, I mean, but at least that's a learning, especially अगर आप serious trading and serious investing 2017 से अगर आपने start किया है, I'm pretty sure कि you have done really well for the kind of time that you spent in the crypto space. Yeah. But I think it was my first cycle, though, mistakes Yeah. होती है, So I have done a lot of mistakes. I have lost decent amount of money as well. So like जो मैंने withdraw किया वो अभी मेरे को लगता है save भी हो गया होगा. I think कहीं ना कहीं तो save हुआ. अगर वो withdraw नहीं करता तो I think I could have lost that money as well. So I've lost close to 50-60 Bitcoin in leverage trading and everything like 2018-2019 के आसपास. So before that I was holding altcoins. So altcoins like 99-95% down थे 2018 एंड तक जाते जाते. देन एक टाइम पे ऐसा आया कि बिटकॉइन की प्राइस बॉटम के आसपास चलेगी, 4000 से नीचे चलेगी. देन आई थॉट कि बिटकॉइन और नीचे जाएगा. अल्टकॉइंस फॉर आल्सो ब्लेडिंग एंड मुझे लगा कि अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है वही ले लो. तो उस टाइम पे सेल किए और बाद में फिर पता चला कि यार अपने से गलती हो गई. फिर रिकवर करने के लिए ओनली ऑप्शन दैट टाइम वाज लिवरेज ट्रेडिंग. बिटमैक्स पे वो करते थे. बिटमैक्स भी काफी बेकार प्लेटफॉर्म था. डिफाई डेक्स क्या हो, तो डिफाई भी नहीं कह सकते उसको, तो वो तो सेंट्रलाइज ही था. सो काफी बेकार था. उसमें इंजन वगैरह प्रॉपर नहीं था, काफी हैंग होता था और a lot of manipulation were there that time. So I lost money. I think many people lost money during that period who were doing trading altcoins and even Bitcoin and everything. So that period was sort of dark phase of my life, and one point of time I also decided to quit crypto because I lost a decent amount of money, and more than money my mental health were affected that time. So I think उस time पे मैंने decide किया एक moment पे कि अभी मेरे को छोड़ना है और कुछ नया करना है. Because I was a very creative person since starting. Like I was a very creative guy, so creativity खत्म हो रही थी. So then I explored film making. उसके अंदर मैंने explore करना start किया. I started watching movies. I started learning film making from online resources. फिर 2-3 short film बनाई, वो सब हुआ. And This उसके is बाद which year? ये कोविड के बाद, like 2020 mainly, entire Got it. 2020. उसके बाद दिसंबर 2020 के आसपास then I decided, my younger brother who is working with Tezos, he told me कि यार अभी you should come back in crypto because bull market था, ये सब था. And that time I had only one platform with जहाँ से मैं कुछ कर सकता था. That platform was my blog. Blog की वजह से ही मेरा जो हुआ था, like blog created me initially. Like blog की वजह से मेरा नाम बना था. एंड ब्लॉग पे मैं कुछ लिखता नहीं था क्योंकि मैंने फील्ड ही चेंज कर लिया. आई वाज नॉट इनटू क्रिप्टो, सो मैंने कुछ लिखा भी नहीं था 1 साल तक. उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग पे राइटिंग स्टार्ट की. एंड ब्लॉग पे 2017 में मेरे एक पर्टिकुलर आर्टिकल से ज़्यादा चलते थे. द पर्टिकुलर आर्टिकल्स वर टॉप 10 लिस्ट. So I used to create this top 10 list. I think I was one of the first guy who have created this top 10 list 2017 में. So top 10 list, monthly list, like top 10 altcoins to buy in August and all these months. So वहाँ से मेरा even traffic भी वहाँ से आया था initially. So मैंने वही जो मेरा जहाँ से मुझे सक्सेस मिला था ना 2017 में, तो वही चीज़ मैंने वापस रिपीट किया लाइक 2021 में. तो मैंने 2021 में टॉप 10 लिस्ट निकाली, लाइक जनवरी की निकाली. और उसके बाद फिर आई वेंट टू डीप क्यूरेशन, लाइक ऑल टाइप ऑफ क्यूरेशन. टॉप 10 लो कैप्स, टॉप 10 मेटावर्स, टॉप 10 एनएफटीज. एंड इसके अलावा बाद में मैंने सोलाना इकोसिस्टम कवर कर लिया, पहले कार्डानो इकोसिस्टम कवर कर लिया. सो आई गॉट दैट आइडिया. लाइक कंटेंट में मेरे को इतना टाइम हो गया तो मुझे वो आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज़ आगे जाके सक्सेसफुल हो सकती है. सो आई थिंक वो मेरे को अंदर वो थोड़ा सा आई गेस आया है लर्निंग से, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया उस टाइम. फेब में वी गॉट द ट्रैफिक बैक लाइक 700K 800K, लाइक फ्रॉम ऑलमोस्ट 5K से 800K 2 महीने में. फिर मिलियन भी मार दिया हमने. उसके बाद मिलियन भी मार दिया और वो हमने पूरा 2021 अच्छे से निकाला. लाइक एवरेज वाज 500K वाज एवरेज एवरी मंथ. एंड सो वही चल रहा था. Is the blog still live? Like, Yeah, are you still live, but I'm not writing anything. बट मैं वापस स्टार्ट करूँगा. मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, लाइक ये यूट्यूब की वजह से मेरे को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है यार. अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि अभी ट्विटर पे भी थ्रेड लिखो, ये सब करो. बट मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि जो थ्रेड लिखूंगा उसको ही मैं कन्वर्ट करके आर्टिकल में भी डाल दूंगा. सो फिर उसी टाइम पे 2021 में ही लाइक उसी टाइम पे मैंने एक वीसी फंड भी सेटअप किया. सो वीसी फंड, इट वाज सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वीसी फंड बट विद ए लिमिटेड सेट ऑफ पीपल. सो आई ऑलरेडी हैड अ कपल ऑफ गाइज जो मेरे साथ थे जिन्होंने मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन बाई किया था 2017 में. सो उसमें से 500 लोग थे. तो 500 में से 50 लोग ऐसे थे कि जो दे स्टेड विथ मी, दे वर बिलीवर ऑफ माय वर्क एंड दे वर इन कांस्टेंट टच विथ मी ड्यूरिंग दैट टाइम. और बाकी 90% लोग तो चले गए मार्केट के साथ. तो उन्होंने ही आइडिया दिया कि
मे बी लाइक वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि उस टाइम पे आईडीओज वगैरह हो रहे थे, प्राइवेट सेल्स वगैरह हो रहे थे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर इंटरेस्टेड टू गेट दिस काइंड ऑफ डील्स. सो हमने फिर सेटअप किया, एंड लाइक मेरे पास ब्लॉग था, सो आई गॉट दिस ऑफरिंग. So I used to pitch these projects कि मैं आपका मीडिया रिपोर्टिंग कर लूँगा, so we need this kind of allocation and everything. So हमने फिर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया, like we invested into 40+ projects. We invested close to $4 million के आसपास 2021 में. So वहाँ से वो काम स्टार्ट हुआ. देन मैंने NFT एक्सप्लोर किया, NFT में काफ़ी NFT बाई भी किए, NFT में लॉस भी काफ़ी हुआ, और IBC DAO सेटअप किया. सो दैट इज अगेन ए फंड जो लाइक वो तो पब्लिक फंड है, लाइक कोई भी ज्वाइन कर सकता है. यू नीड टू बाई आवर NFT, देन यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट DAO. सो या उसके बाद बेयर मार्केट आ गया वापस, और बेयर मार्केट में मैंने ये सोचा कि यार इंडिया के लिए क्या करें, क्योंकि ब्लॉग में इंडिया की पब्लिक थी नहीं, मेरे पास US की पब्लिक थी, यूरोप की पब्लिक थी, एंड मुझे लगा कि इंडिया में ज़्यादा पब्लिक ग्रो हो रही है. सो उसको कैसे मैं कैटर कर सकता हूँ, तो देन आई थॉट कि यूट्यूब से मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ. एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि यूट्यूब मैंने पहले भी ट्राई किया है, 2016 में भी ट्राई किया है. एंड आई वाज ए कैमरा शाई गाय, आई वाज नॉट ए ग्रेट स्पीकर, इवन आई एम नॉट ए ग्रेट स्पीकर राइट नाउ. तो मेरे को थोड़ा था कि यार ये मेरा डोमेन नहीं, मैं कैसे करूँगा. बट मैंने फिर अपना कंफर्ट ब्रेक किया बीच में, और मैंने सोचा कि करते यार, क्या फ़र्क पड़ता है, नॉलेज होगा तो चलेगा, स्पीकिंग वगैरह ठीक है, वो हो जाएगा टाइम के साथ. सो मैंने फिर यूट्यूब भी चालू किया, और बस अभी वो चल रहा है, यूट्यूब पे फोकस चल रहा है. ट्विटर तो अपना पहले से ही, उस पर अभी थ्रेड वगैरह लिखता हूँ. बस यही चल रहा है अभी हाल फिलहाल. आई थिंक इंडिया में बहुत कम यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इतने इन डेप्थ में जाके समझाते हैं जितनी आपके चैनल में आप समझाते हो. दैट ब्रिंग्स टू मी अ क्वेश्चन कि like as a content creator in the crypto space, every day there are so many news, every day there are so many things happening. So what are the few tools or websites that you keep a track on, जो आपके ब्राउजर में शायद आपने बुकमार्क किए होंगे? So what are those tools or websites? ऐसे बुकमार्क तो नहीं किए, बट आई कीप ऑन चेकिंग टोकन टर्मिनल. अभी रिसेंटली डिफाई लामा मैं चेक करता हूँ काफ़ी. एंड इसके अलावा आई गेस ये दो ही है रिसर्च के लिए. लाइक मतलब मेरे को वो देखना रहता है ना कि TVL कहाँ बढ़ा है, फीस, मतलब टोकन टर्मिनल आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ रिसेंटली. मुझे टूल काफ़ी सही लगता है, तो उस पर आपको ऑन चेन ग्रोथ का आइडिया लग जाता है. और इनटू द ब्लॉग आई वुड लाइक टू ऐड, इनटू द ब्लॉग भी मैं यूज़ करता हूँ, ड्यून भी यूज़ करता हूँ. सो बट वो थोड़ा कम करता हूँ. ड्यून तो स्पेसिफिक मुझे कुछ ऐसा डैशबोर्ड चाहिए तभी मैं चेक करता हूँ. और ड्यून में वैसे लाइक स्पेसिफिक ही मिलता है एयर ड्रॉप का आपको ज़्यादा मिल जाए. कल मैं चेक कर रहा था इथेरियम का जो एग्जिट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोग क्यू में है विड्रॉल्स के लिए, तो वो डेटा ड्यून पे मेरे को नहीं मिला. वो डेटा फिर टोकन अनलॉक्स पे मिला. तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड टोकन अनलॉक्स एज वेल. सो वो भी काफ़ी सही वेबसाइट है. सो मतलब कर लेते हैं, मतलब डिपेंड करता है मुझे क्या रिक्वायरमेंट है. आई नो कपल ऑफ रिसोर्सेज, बट मेनली टोकन टर्मिनल एंड डिफाई लामा वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ. And what about tracking the news and events? उसके लिए मैं वेबसाइट तो विजिट नहीं करता. ट्विटर पे जनरली सब पता चल जाता है. लाइक ट्विटर इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे लाइक मेरे को लगता है इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे ही मिलती है सारी. इवन अल्फा उधर मिल जाते हैं, और आपको कई सारे थ्रेड्स मिल जाते हैं, तो इनोवेशंस क्या हो रहे मालूम पड़ जाता है. सो मुझे ये लगता है, इवन मैंने कई बार शेयर भी किया है, कि आपकी ट्विटर फीड को अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़रूरी है. आपकी ट्विटर फीड में अगर सही इंसाइट मिल रही है, सही लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ वही मिल जाएगा. मेरे केस में ऐसा है कि मैंने इतने अच्छे लोगों को फॉलो किया हुआ है, और मैं लोगों को म्यूट भी करता हूँ. जो लोग मेरे को सही नहीं लगता उनको म्यूट भी करता हूँ. मैं ब्लॉक भी करता हूँ बाकायदा, जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये शेल कर रहे हैं या फिर ये कंटेंट मेरे को देखना नहीं है. क्योंकि यू शुड बी वेरी सेलेक्टिव ट्विटर के केस में, तो फिर सब मिक्स हो जाएगा, तो आप मिस करोगे सब कुछ ही. और जैसे NFT पे तो सारा अल्फा वहां से मिलता है. इवन कॉइन के अल्फा, अल्ट कॉइन्स वगैरह सब भाई ट्विटर पे ही सब लोग शेयर करते हैं मेनली. सो वही मैं ट्राई करता हूँ कि ट्विटर को जितना क्लीन रख पाऊँ, और वहां से ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन में लेता हूँ. Got it. That's a valuable insight. Talking about education, like you spoke कि it's blockchain.com बहुत successful था. At the times it was getting over 500k views like in 2016-17, right? Yeah. But YouTube पे आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि whenever you create content where you're not shilling or probably not giving a direct financial advice, तो views काफी कम आते हैं. So what do you think? What is the challenge here? Like, how can we solve it as like DYDX Foundation, as a community? How can we solve DeFi and education to DeFi in India? I think उसमें ऑडियंस क्रिएट की जा रही है यहाँ पे. सो जो टोकन वाली ऑडियंस है या फिर जो शिलिंग वाली ऑडियंस है, वो ऑलरेडी लाइक उसमें कई लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और ऑलरेडी ऑडियंस पिछले 4-5 सालों में दूसरे यूट्यूबर से क्रिएट की है.
इवन जो ट्रेडिंग के कॉल्स वगैरह फॉलो करते हैं या टीए जो फॉलो करते हैं। और अगर अपनी एजुकेशन वाली ऑडियंस की बात करते हैं तो कासिफ भाई ने वो काम स्टार्ट किया अपने साइड से, वैसे देखा जाए तो उन्होंने वही आई थिंक पहले एक मेन स्ट्रीम चैनल कह सकते हैं जो एजुकेशन पे जिन्होंने बात करना स्टार्ट किया। वेब3 की दुनिया पे वेब3 भी कवर करते हैं, बिटकॉइन का तो खैर उनका है ही है। सो आई थिंक वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और अभी उनके ऑडियंस को भी रीच, उनकी ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा रीच मिल रहा है, उनकी लाइक कंटेंट को भी रीच अच्छा मिल रहा है। सो मेरे को ये लग रहा है ना कि ऑडियंस अभी बिल्ड हो रही है, क्योंकि एक चेंज आ रहा है। जैसे अगर आप वैसे भी देखोगे ना कि पिछले 2 साल में थ्रेड्स इतने आते नहीं थे, थ्रेड्स लोग इतने पढ़ते नहीं थे। ट्विटर पे तो काफी चेंज आपने नोटिस किया होगा, लाइक पहले शिलिंग ही होती थी। अभी जो अच्छे थ्रेडर्स है उनको भी 100K 200K फॉलोअर्स उनके भी है, लाइक पीपल आर रीडिंग देयर थ्रेड्स एंड ऑल, लाइक ट्रैफिक मिल रहा है उनको। सो अभी यूट्यूब पे धीरे धीरे वो चीज मूव हो रही है, बट हो जरूर रही है, लाइक ऑडियंस बिल्ड हो रही है। तो ये हो सकता है आने वाले 1 साल में ऑडियंस काफी मिल जाएगी जो लोग एजुकेशनल कंटेंट को फॉलो करेंगे। आई थिंक वो होना ही है, अल्टीमेटली वो होना ही है। और उस केस में अभी यहाँ पे वो लोग भी है ना कि जो ऐसे लोग थे जो खाली पैसे कमाने के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए, तो वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, राइट। अभी जो लोग स्टे किए बेयर मार्केट में वही लोग हैं जिन्होंने थोड़ा पैसा खोया है या फिर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग एयर ड्रॉप पे चले गए। तो अब अगर आपको मैं सबसे अच्छी ऑडियंस की बताऊं तो जो एयर ड्रॉप हंटर्स है ना, वो सबसे अच्छी ऑडियंस है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लोर किया डिफाई का, उनको अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। और जब वो एक्सप्लोर करते हैं ना, दे ऑल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। वो सीखते भी है ये चीज़, ये कैसे काम करती है, चीज़ कैसे काम करती है। सो ये जो ऑडियंस है वो परफेक्ट फिट है एजुकेशन के लिए। और एयर ड्रॉप की जो ऑडियंस है वो काफ़ी बड़ी हो रही है इंडिया में। सो मेरे हिसाब से आई थिंक काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है क्रिप्टो एजुकेशन का। Perfect. Also, like now that we are talking about how education, crypto education, blockchain education is evolving in India, coming to the topic of DeFi, like what do you think? What has been a significant innovation in DeFi, which could probably get mass adoption for DeFi? Like anything which is on your mind? So DeFi में एक तो आपका ओमनी चेन DeFi कह सकते हो। So and the main adoption and the main innovation if we talk about, अभी recently account abstraction का हुआ है वैसे। So account abstraction में I was trying one wallet yesterday, Avocado wallet जो InstaDev ने launch किया है। So उसमें क्या है ना कि उसमें like if you have asset in let's say Ethereum में आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना है तो गैस फीस आप आर्बिट्रम से पे कर सकते हो, गैस फीस आप बाइनेंस से पे कर सकते हो, लाइक कोई भी ईवीएम चेन से आप गैस फीस पे कर सकते हो। और अभी तो यूएसडीसी में पे करने का फंडा है, बट आगे जाके किसी भी और भी 3-4 सपोर्टेड कॉइन क्रिप्टो में आप पे कर सकते हो। तो पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि इवन मैंने पर्सनली काफी फेस की है कि जैसे आप आर्बिट्रम पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, गैस फीस नहीं, फिर आप उधर से उधर मूव कर रहे हो, ब्रीज कर रहे हो, तो ये काफी इश्यूज हो जाता है। और सेकंड जो डिफाई के लोग होते हैं, लेंडिंग बोरोइंग में भी काफी इशू होता है कि उसमें भी जैसे रेडियंट कैपिटल कर रहा है, तो उसमें आई गेस आर्बिट्रम से बोरो करके आप वहां से रीपे कर सकते हो, इथेरियम से रीपे कर सकते हो। तो जो क्रॉस चेन वाला फंडा है ना डिफाई का, वो काफी सक्सेसफुल है। और ब्रीज इज आल्सो पार्ट ऑफ डिफाई, तो ब्रीज के अंदर भी क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है, जो लेयर जीरो जो कर रहा है वो काफी सही है। सो लेयर जीरो के टेक यूज करके, जैसे स्टार गेट है, काफी अमेजिंग टूल है। सो आई थिंक वो डिफाई में अच्छा है। उसके अलावा डेरिवेटिव्स का जो अभी इकोसिस्टम बन रहा है, जिसको डिफाई में अगर आप ये बात करोगे कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो मिला है रिसेंटली, दो चीज को मिला है। एक तो रियल यील्ड को मिला है और एक सेकंड आपका डेरिवेटिव्स को मिला है। और रियल यील्ड भी डेरिवेटिव्स की वजह से ही मिला है, जीएमएक्स ने इंट्रोड्यूस किया है रियल यील्ड को। ऑल्सो डिफाई में कुछ और भी ऐसी कैटेगरी जिन पे काम हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट कैटेगरी की बात करते हैं तो IPOR करके प्रोजेक्ट है। सो इंटरेस्ट रेट का मार्केट काफी बड़ा है, ट्रेडिशनल मार्केट साइज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है। तो अभी जो आपकी फंडिंग रेट होती है, इंटरेस्ट रेट, फंडिंग रेट वगैरह, उसको आप ट्रेड कर सकते हो, उसके डेरिवेटिव्स बनाए हैं। और इसके अलावा आप जो लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव्स है वो भी डिफाई का ही पार्ट हो गया। सो आई थिंक इनोवेशन तो काफी हुआ है और काफी अमेजिंग इनोवेशन हुए। और आगे जाके NFT और डिफाई के कई सारे इनोवेशन हो रहे हैं। देयर इज वन प्रोजेक्ट कॉल्ड गमबॉल प्रोटोकॉल। सो गमबॉल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब आप NFT लॉन्च करते हो ना, तो उसके साथ वो टोकन भी लॉन्च करता है, ERC20 टोकन भी लॉन्च करता है। तो जब भी आप NFT सेल करते हो तो आप टोकन को पार्ट में भी सेल कर सकते हो। यू डोंट नीड टू सेल योर होल NFT एंड एवरीथिंग। उस NFT को आप स्टेक भी कर सकते हो, उस टोकन को आप आगे जाके आई थिंक लैंडिंग बोरोइंग का भी, उसमें काफी कुछ है, सब कुछ ही डाल दिया। डिफाई प्लस NFT का लाइक मैक्सिमम यूज केस आप कह सकते हो। NFT फाइनेंस, NFT5 तो NFT5 में ये गमबॉल प्रोटोकॉल काफी सही कर रहा है। इसके अलावा और है जैसे आपका इस टाइप के काफी सारे हैं जिसमें BAYC MAYC जो ब्लू चिप NFT जो है वो आप
डिपॉजिट कर सकते हो, फिर उसके अगेंस्ट आप बोरो कर सकते हो 60% Correct. 70% ऑफ द वैल्यू, वो भी काफ़ी इस टाइप से पॉपुलर हुआ है। सो आई थिंक वो, बट ये एनएफटी फाइनेंस का अभी इतना मैच्योर नहीं है। आई थिंक इतना छोटा मार्केट है तो अभी थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। जैसे बीच में एक प्रोटोकॉल के साथ हुआ था जिसपे BAYC जो है काफ़ी सारे लिक्विडेट होने वाले थे, नाम Correct, याद नहीं आ रहा correct. प्रोटोकॉल का, तो वो उस हाँ, टाइम पे मैं भी देखा था. Yeah. हाँ, तो उस टाइम पे काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए थे इसके अराउंड। बट आई थिंक डिफाई का अल्टीमेटली फ्यूचर काफ़ी सही है ना। L2s के अराउंड जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, और इवन जीके सिंह के बाद जीके सिंह में और भी नई इनोवेशंस हो गए। डिफाई, मेरे को लगता है ना, डिफाई में 40% के आसपास ही यूज केस एक्सप्लोर हुए हैं। अभी भी 60% यूज केस हमको पता ही नहीं कि जो आगे जाके फ्यूचर में आ सकते हैं, काफ़ी बड़े हो सकते हैं। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। एंड अभी ये मोबाइल पे ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं। यूनिस्वैप ने अभी मोबाइल वॉलेट लॉन्च Yes. किया है आज ही लॉन्च किया शायद. Yeah. आज ही लॉन्च किया है। तो अभी ये इनका क्योंकि मोबाइल वॉलेट से ही मेन स्ट्रीम अडोप्शन आएगा, क्योंकि लोग मोबाइल वॉलेट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन इंडिया में लोगों के पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लोग एयर ड्रॉप हंटिंग भी मोबाइल पे ही करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन आई थिंक इज ए वे टू गो। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा लास्ट में, कि जो ये वॉलेट है ना, जो डिफाई के साथ आ रहे हैं, जैसे रेनबो इज वन ऑफ द एग्जांपल, आर्जेंट इज Yes. द अनदर एग्जांपल, जिसके अंदर आप स्टेक भी कर सकते हो, आप सप्लाई कर सकते हो, आप लैंडिंग बोरोइंग कर सकते हो, आप उसके अलावा स्वैप कर सकते हो, सारा डिफाई आप उस वॉलेट के अंदर कर सकते हो। तो वो गेम चेंजर होने वाला है। अल्टीमेटली वॉलेट के अंदर डिफाई आएगा ना, तो वही मेन गेम बनेगा। सो यही सीन है डिफाई का आई थिंक, और फ्यूचर इज ब्राइट फॉर डिफाई। Also, to add, nothing discussed on this podcast is a financial advice. Please अपनी Yeah. खुद की रिसर्च करो, right? Awesome. So, रिस्क से याद आया कि want to ask कि आप कभी हैक हुए हो? Like, have you ever lost funds on in a hack? नो हैक तो मैं नहीं हुआ, बट मैंने प्राइवेट की लूज की है। तो प्राइवेट की लूज मैंने की थी EOS के टाइम पे की थी। EOS का माइग्रेशन हुआ था, पहले इथेरियम पे लॉन्च हुआ था EOS। सो तो उस टाइम पे जो वॉलेट था उसका मैं फिर वो की खो गया था, और उसके बाद फिर मैं माइग्रेट करना भूल गया, उसका ड्यूरेशन निकल गया था, तो वो सब रिकवर कभी हो ही नहीं पाया। सो बाद में कुछ तो EOS ने ऐसा कुछ निकाला था टूल जिससे रिकवर आप कर सकते हो, तो मेरे को रिकवर बाद में हो गया था, बट 1 साल तक रिकवर नहीं कर पाया था। सो दैट वाज द ओनली इंसिडेंट। बट हैक में कभी नहीं हुआ। बट हैक कभी भी हो सकते हैं, हैक का कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। हैक तो अभी So, हर्षा क्रिप्टो तेलुगु, वो भी बीच में हैक हो गया। लाइक ही आल्सो Correct. लॉस्ट $50,000 के आसपास। so Hitesh भाई, आप पहले you have been an ethical hacker. So I think nobody would have so much insights about security and risk management like you. So I would love if you could just give us some tips to the viewers of this channel ki how can you be safe, like all the traditional things we all know, like keep your secret code probably on a paper, don't share it, unknown Yeah. website से आप अपना connect मत करो, but आप जब एडवांस लेवल पे आप अपना सिक्योरिटी मेंटेन करते हो, हाउ डू यू डू इट? सो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो आपका बर्नर वॉलेट है, जो एक्टिव वॉलेट है, वो तो कभी भी हैक हो सकता है। मतलब मान के चलता हूँ हैक हो सकता है, और इसलिए मैं ज़्यादा फंड लेजर में रखता हूँ, और लेजर को मैं कनेक्ट काफ़ी रेयरली करता हूँ। लाइक जितना कम ऑनलाइन कनेक्ट करोगे उतना आप हैक से बचोगे। और कई लोगों को मैंने देखा कि लेजर कनेक्ट करके भी ट्रेड करते हैं, वो करने से मतलब नहीं है, तो वो सबसे बेकार चीज़ है। और यहाँ पे हैक करने का जो सबसे कॉमन तरीका वो ये है कि आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, और जब फाइल डाउनलोड करते हो तो उस केस पे की लॉगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाता है। तो आपकी कीज लॉक करता है और उसके स्क्रिप्ट के थ्रू उसके सर्वर पे भेजता है। तो ही विल गेट एक्सेस टू ए प्राइवेट की एट सम पॉइंट। और इसके अलावा कई लोग ऐसा भी करते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे स्क्रिप्ट भी डाउनलोड कर लेते हैं। वो स्क्रिप्ट तो वो हिडन कर लेते हैं, कई बार PDF के पीछे भी हिडन हो जाती है, वर्ड फाइल के पीछे भी हिडन हो जाती है। एक्सी के अगर आपको पता है एक्सी का हैक कैसे हुआ था? एक्सी का हैक कैसे हुआ आपको तो जॉब पता ही होगा। जॉब जॉब वाला, ऑफर का हाँ, लेटर था और उसने फिर एक्सेप्ट किया था। तो इतना मतलब वो हैक हो सकते तो अपन क्या चीज़ है। तो और ये इसी तरीके से लोग हैक होते हैं। इसमें अल्टीमेटली बंदे के ग्रेड को, या जो बंदा सोच रहा है कि मुझे मिल जाए, उसी चीज़ को सोशल इंजीनियरिंग पहले की जाती है। स्मार्ट हैकर पहले पता लगाएगा, उसका लाइक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, टारगेट बनाएगा, इसको टारगेट बनाना है, तो उसका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा। वो बंदे का माइंडसेट क्या है, वो क्या सर्च कर रहा है। लाइक लिंक्डइन पे अगर वो जॉब सर्च कर रहा है तो उसके हिसाब से अटैक करेगा। कोई एयर ड्रॉप हंटर है तो उसको एयर ड्रॉप के हिसाब से अटैक करेगा। तो आई थिंक पूरा प्लान के साथ ये लोग करते हैं। और बाकी जनरली लोग है ना उसमें ज़्यादा फंसते हैं। कम्युनिटी रोल की जॉब वगैरह ऑफर होती है आजकल ट्विटर पे, कि वी विल पे $1,000 $2,000 डिस्कॉर्ड आप मैनेज कर लो। तो कई सारे लोगों को जॉब चाहिए। क्रिप्टो में सबसे इजी जॉब ये वाला ही होता है। तो वैसे भी लोग काफी टारगेट करते हैं। तो ये जो भी लोग अलग अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं, उनका कॉमन
मीडियम ये होता है कि वो आपको कुछ तो फाइल या कुछ तो भेजेंगे जो बोलेंगे आप डाउनलोड करो। अगर आप डाउनलोड करोगे तो आप फंसोगे, नहीं करोगे तो आप बच जाओगे। तो कुछ डाउनलोड मत करो। और इसके Correct. अलावा कई बार गूगल सर्च वगैरह पे भी मालवेयर्स वगैरह मिल जाते हैं, आपकी स्पॉन्सर्ड वेबसाइट पे आ जाती है कई सारी जो मैलिशियस वेबसाइट्स होती है। तो क्रिप्टो की इस टाइप की कई सारी मैलिशियस वेबसाइट्स है। सो वहाँ से भी मतलब आई थिंक वो कई बार है ना, आप ऐसे पता भी नहीं लगा सकते। जैसे आर्बिट्रम का बीच में एक वेबसाइट चल रहा था, तो उसने आई को कुछ तो लिखा था, तो ऐसे आप दूर से पढ़ोगे तो आप इतना केयरफुली नहीं पढ़ोगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो जल्दबाजी के Correct. चक्कर में ये ज्यादा होता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि जल्दबाजी जितना आप करोगे ना, तो उतना आप या तो फिशिंग लिंक में जाओगे या फिर कोई गलत फाइल डाउनलोड करोगे और आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो आई थिंक केयरफुली और चीजों को ढंग से गो थ्रू करना और वेरीफाई करना काफी जरूरी है। So in short, FOMO में नहीं आना है। FOMO में हाँ, आके FOMO कोई में भी वेबसाइट don't just open it, connect your wallet, don't do that. Probably जो protocols आप ज़्यादा use कर रहे हैं, we can just bookmark it so that we know कि we are going to the right website, right? और अभी ये एयर ड्रॉप हंटर्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि एयर ड्रॉप हंटिंग तो वैसे कई लोग ज्यादा करते ही है। तो कई सारे फेक एयर ड्रॉप्स काफी आते हैं, NFTs भी कई सारे फेक आते हैं। तो और जैसे उस पर फिर क्या होता है कि आप तो एक बार कर लेते हो, स्टेप्स वगैरह कर लेते हो, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही जगह साइन इन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अभी जो टूल आ गए, पॉकेट यूनिवर्स हो गया, फायर हो गया, वो आप चेक कर सकते हो। तो आपको ये पता लगेगा कि आप जहाँ साइन कर रहे हो तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको पता चलेगा कि वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे जा रहा है। सो आई थिंक ये टूल काफी हेल्पफुल है। वैसे पॉकेट यूनिवर्स और फायर से भी आप मिनिमाइज कर सकते हो आपके रिस्क को। Got it. So now I would like to know कि like you are a crypto investor, trader, content creator on a daily basis. You also run IBC Capital. So how does your day look like? Like what time do you wake up? उठ के आप पहले चीज क्या करते हो? Like apart from all the human activities that we all do, like Yeah. how does your work start? सो मेरा तो लाइक वैसा सीन है कि उठ के मैं बाइनेंस चेक नहीं करता उठ के सबसे पहले करता था, अभी नहीं करता। सो मैं उठ के ट्विटर पहले चेक करता हूँ, थोड़ा चेक करने के लिए कि क्या हुआ रात को, क्योंकि रात को चीज़ें काफ़ी होती है। सो वो चेक करता हूँ। सो उसके बाद तो मतलब मेरा जनरली काम कंटेंट में ही मेरे को टाइम लगता है। बाकी ट्विटर तो आप ट्वीट तो ऐसे ही लिख कर लेते हो, लाइक कभी भी कर सकते हो। और थ्रेड कभी लिखना होता है तो उस पर मॉर्निंग में कभी मैं थ्रेड लिख रहा हूँ आजकल, तो उस पर थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम जाता है। बाकी कंटेंट में वही 2 घंटे लगते हैं। मतलब मेरे को कंटेंट में ना उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, वो पब्लिश करने में, थोड़ा सा एडिट करने में। मेरे को रिसर्च वगैरह में काफ़ी कम ही करना पड़ता है मुझे। कुछ ज़्यादा ही मुझे पता नहीं तो मैं रिसर्च करता हूँ, बाकी मैं बैठ के बोल लेता हूँ, ऐसा सीन है। बस वही है। बाकी तो इसके अलावा मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, उतना कुछ काम नहीं है मेरे को। So ट्रेडिंग आप अभी करंट सिनेरियो में आप नहीं कर रहे? ट्रेडिंग मैंने कल से स्टार्ट की है। मैं आई वाज लुकिंग फॉर सम कंफर्मेशन। मैं काफ़ी वैसे ट्रेड करता हूँ, काफ़ी मेरे को लगता है कंफर्मेशन है। तो अभी अल्ट कॉइन्स का मेरे को लगा कंफर्मेशन है, तो मैंने एलडीओ की ट्रेड ओपन की है। और बीच में मैंने की थी ट्रेड, फिर मतलब फिर लॉस होता तो फिर मैं नहीं करता। जैसे मेरे को बीच में थोड़ा 2-3 दिन लॉस हुआ था, तो मुझे लगा अभी सही टाइम नहीं है। और वो सही टाइम था भी नहीं, बीच में पता नहीं चल रहा था कौन से रैंडम पंप एंड डंप हो रहे थे, तो मैंने फिर लीव कर दिया। और ट्रेडिंग में भी मैं वैसे मूव करता हूँ, कभी अल्ट कॉइन्स में करता हूँ, कभी एनएफटी में करता हूँ। जहाँ मेरे को लगे कि ट्रैक्शन सही है तो दोनों मार्केट से ही ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैं कुछ जहाँ पे सही लगता है मैं कर लेता हूँ। I mean like more of a narrative based trading. नैरेटिव बेस या नैरेटिव पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और नैरेटिव की कॉइन्स की, जैसे अभी नैरेटिव LST का वापस बन रहा है, क्योंकि स्टेकिंग होगी। तो स्टेकिंग तो LST के थ्रू ही ज़्यादा लोग करेंगे, इथेरियम की स्टेकिंग, क्योंकि वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो उस पर LST के कॉइन्स ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो वही सोच के मैंने फिर मैं वो चेक करता हूँ कि चार्ट वगैरह उस टाइप से कंफर्मेशन मिल रहा है, तो LDO मेरे को ठीक लगा। और बाकी और भी जो LST कॉइन आई थिंक अच्छा कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस तो बिल्कुल नहीं है, तो कोई पिक मत करना इसको, मैं तो खाली बता रहा हूँ। Got it. So ट्रेडिंग अभी आप शुरू किए हो। So like do you like आप जो बुक बेस्ड ट्रेडिंग है वैसे तो बिल्कुल like अभी तो फिर आप लेवरेज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। It's just लेवरेज spot ट्रेडिंग में में करता हूँ, लेकिन स्पॉट नहीं करता। तो लेवरेज यू बट 3x के आसपास, लाइक लेवरेज ये और ये काफी छोटा अमाउंट के साथ, $500, $100,000। वो थोड़ा सा आप लेवरेज जो बंदा काफी किया होता है वो पूरा खत्म नहीं कर सकता। जैसे सिगरेट का क्या सीन है कि आप सिगरेट पूरा नहीं छोड़ सकते, अगर चेन स्मोकर रहे हो तो आप 1-2 पे आ सकते हो, ऐसा सीन है। तो इसका लेवरेज का गेम भी ऐसा ही है। तो पूरा छोड़ने वाला गेम नहीं, आप कभी कभी कर सकते हो। इसलिए मैं छोटे फंड के साथ करता हूँ, तो थोड़ा लॉस हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं वैसे। Interesting. So अभी like how do you manage your risk? Like I'm pretty sure you have made a lot of money in 2016, 17, 18.
बट क्या आपका नेटवर्थ मैक्सिमम क्रिप्टो में है या यू हैव डाइवर्सिफाइड इनटू अदर सेक्टर्स? So I'm pretty much diversified. Like I'm diversified into real estate, gold, mutual funds. स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, काफ़ी ना के बराबर है. बाकी मेनली इथेरियम में ही है. वैसे मेनली इथेरियम में ही है और बिटकॉइन में थोड़ा है, बट बिटकॉइन में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता. बिटकॉइन में मेरा ऐसा प्लान है कि आई थिंक बिटकॉइन कुड बी मनी इन द नियर फ्यूचर, तो उसको वैसे ही होल्ड ही करना है वैसा. तो वो मेरा सीन है. सो इथेरियम में आई थिंक इथेरियम आई एम मोर बुलिश इथेरियम में, क्योंकि इथेरियम का आई थिंक सप्लाई तो रिड्यूस हो रहा है और डिमांड बढ़ रहा है, तो आई थिंक वो आगे जाके सप्लाई शॉक आ सकता है. Got it. Awesome. So Hitesh bhai, would you like to give some more tips to beginners जो अपनी journey start करें DeFi में? What things to read, what things to watch, whom to follow? Like obviously apart from you, और क्या resources हैं जो वो लोग start कर सकते हैं in their DeFi journey? And probably do's and don'ts. Probably आपका पूरा 6 साल का जो आपका experience है, वो अगर आपको कुछ लाइनों में बोलना है तो आप उसको कैसे express करेंगे? सो डिफाई में मेनली एक तो आपका डेक्स वाला पार्ट हो गया, तो वो तो जनरली आप ट्राई कर सकते हो, यूनिस्वैप वगैरह पे ट्राई कर सकते हो. तो उस पर टोकन्स वगैरह आप ट्राई करो कि यू नो लिक्विडिटी वगैरह चेक करके ही आप टोकन बाई करो, क्योंकि अगर आप उस पर देखोगे, डेक्स टूल पे देखोगे, जैसे आर्बिट्रम पे रिसेंटली हो रहा था, तो कई सारे फेक टोकन भी लिस्ट हो रहे थे. जैसे सेलेस्टिया का एग्जांपल लेते, सेलेस्टिया का टोकन तो आया नहीं, बट सेलेस्टिया ट्रेड हो रहा था. मैंने नोटिस किया था, ट्वीट भी किया था, और आप बिलीव नहीं करोगे उस पर 300K के आसपास वॉल्यूम भी आ गया था, लाइक डेली वॉल्यूम. सो लाइक वो सीन है, लोगों को आइडिया ही नहीं वो क्या कर रहा है. तो ये फेक लिस्टिंग होगी तो अल्टीमेटली वो डूबने वाला ही है. तो आपको ये पता रखना है कि अगर आप डेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर इस टाइप के रैंडम शिटकॉइन बाय कर रहे हो, तो वो फेक लिस्टिंग से दूर रहो. और शिटकॉइन भी बाय कर रहे हो, पहली बात तो शिटकॉइन बाय नहीं करना चाहिए. फिर भी आपकी इच्छा है कि शिटकॉइन बाय कर रहे हो, तो अगर वो पैसा डालो तो ऐसा डालो कि एकदम कि डूबे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, वैसा सीन रखो. और उस पर भी लिक्विडिटी चेक करना जरूरी है, वॉल्यूम चेक करना जरूरी है. कई बार ऐसा भी होता है डेक्स के अंदर, जैसे एलडीओ के साथ, एलडीओ का मैंने नोटिस किया था, एलडीओ डेक्स में भी लिस्टेड था आर्बिट्रम के कुछ डेक्स पे, एलडीओ का सेम कॉइन, और उसका लिक्विडिटी कम था और वॉल्यूम कम था. तो ये भी होता है, यू नो, पॉपुलर कॉइन जो है वो भी डेक्स पे उसी नाम से भी लिस्ट करते हैं. ये चीज भी मैंने नोटिस की है. जो एलडीओ का बोल रहे हो वो ओरिजिनल था कि फेक था? फेक था आर्बिट्रम के ऊपर. हाँ, एलडीओ का और भी 2-3 मैंने चेक किए थे. एक अभी नाम याद नहीं आ रहा. एक जो फैंटम का कॉइन था, लाइक वो ये लोग क्या करते पता है, जैसे कोई कॉइन बाइनेंस का है, उसी कॉइन को फिर वो उस पे भी सेम नाम से टिकर बना के उस पे डाल देगा, आर्बिट्रम पे डाल देंगे, आर्बिट्रम का उसको बाइनेंस पे डाल देंगे. तो वैसा सीन हो जाता. बंदा फिर सोचता है कि लोग क्या ऐसा जनरली नाम सुने होते कि यार ये कॉइन तो अच्छा है, मैं ले लेता हूँ. फिर वो इतना वेरीफाई नहीं करते नए बंदे कि यार ये तो आर्बिट्रम है या बाइनेंस है. ये चीज आप डेक्स टूल पे आप कभी चेक करना, आपको कई सारे फेक इस टाइप से मिल जाएंगे. तो ये मेजर यहाँ पे है. और सेकंड, लोग ज्यादा एपीआर के चक्कर में काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे पहले भी कई लोग कर रहे थे. तो स्टेकिंग अगर आपको करना है तो आप सही बड़े कॉइन में स्टेक करो, और स्टेकिंग का नॉलेज भी लेना जरूरी. स्टेकिंग में भी आप एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो, कस्टोडियल वे में कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग भी होती है, जैसे स्टेकफिश इज वन ऑफ द एग्जांपल जो प्रोवाइड करता है. तो आप स्टेकिंग करना है तो आप ट्राई करो, जैसे मैटिक कर लिया, पोल्काडॉट कर लिया, इथेरियम कर लिया, बड़े कॉइन कर लिया, उस पर रिस्क कम है. और आप जैसे हाई एपीआर के चक्कर में ऐसे कॉइन में स्टेक कर रहे हो जिनकी खुद की कॉइन की वैल्यू ड्रॉप होने वाली, तो आपको क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है. टोकनोमिक्स जाना बहुत इंपॉर्टेंट. टोकन इकोनॉमिक्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार. और टोकनोमिक्स के लिए टोकनोमिक्स डाओ करके वेबसाइट भी है वैसे, तो अच्छा, वो उन्होंने एक पूरा हब बनाया हुआ है, उसमें टॉप प्रोजेक्ट्स कवर किए. टोकनोमिक्स का डिटेल में एनालिसिस वो लोग करते हैं, और बाकी उन्होंने ऐसे रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह काफी कुछ शेयर किया. तो वो काफी हेल्पफुल वेबसाइट, आप चेक करना, काफी सही है. तो वो कर सकते हैं. इसके अलावा डिफाई में आपका और डिफाई में लोगों को आवे भी यूज करना चाहिए. आवे कैसे काम करता है, कंपाउंड कैसे काम करता है, तो इसके लिए डिफाई सेवर करके वेबसाइट है. तो डिफाई सेवर में आपको 100 ईथर का एक टेस्ट बैलेंस मिलता है, डेमो अकाउंट मिलता है, और उसपे सारे टूल आपको मिल जाते हैं. मेकरडाओ मिल जाता है, आवे और कंपाउंड सारे ही मिल जाते हैं. तो आप ट्राई करो उसको. ट्राई करके आपको आइडिया, जितना इसे प्रैक्टिकल गेम है ना, जितना आप प्रैक्टिकल करोगे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप से चीजें काम करती है. और डिफाई सेवर का एयर ड्रॉप भी आएगा फ्यूचर में, ऐसा काफी हाई चांसेस है, तो आपको एयर ड्रॉप भी मिल सकता है. तो आई थिंक डिफाई सेवर सबको यूज करना चाहिए. काफी अल्फा दे दिया हितेश भाई ने आज. But again, like, just to conclude, none of this is financial advice, obviously. So please do your own research. And thank you so much, Hitesh bhai, for coming on this channel. And I'll be linking all your social media handles in the description. So if anyone wants to check out Hitesh bhai's content, which you should check out if you really want to get into the right direction, so please do subscribe to Hitesh bhai as well.